So today we'll discuss on the chapter that is preformulation, which is quite an important part of our syllabus. Okay. So हम लोग क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे हम करके उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे. ओके. तो लास्ट क्लास आई थिंक वी हैड अ क्लास ऑन आई थिंक last class I think semi solids and then I think monocyclic liquid is form and suppositories, right? So today we'll talk about preformulation. Okay, yeah, what are its constituents and what are the questions and concepts regarding it. The first question that we have here is the most stable form of which is the most stable polymorphic form of it. So the first option is highest melting point and lowest resolution rate, highest solubility, low viscosity. Um, then you have lowest melting point and highest resolution rate, and highest melting point and highest resolution rate, right? So we know that polymorphs are generally crystalline substance present in one or more like X, Y, Z. They are present in different forms. Okay, we know that, right? And one form is stable, and the remaining are metastable. Metastable, often they are metastable means it is near about stable, okay, and or they are unstable, okay. And amorphous forms are is one. They are one is stable and the remaining are metastable, not unstable. Okay, amorphous one is amorphous. Amorphous is the one with which is unstable in nature. It is unstable in nature. So the one with the most stable is the one with the highest melting point. Okay. If the more the stability of the compound, the more will be the melting, right? And energy will be low. Energy will be low. Energy क्या होगा? Energy will be uh, low. Okay, it will be low. And so dissolution क्या होगा? Dissolution हम लोग का slow होगा. It will be slow always, right? So इसका मतलब क्या है? इसका अगर तुम ऑप्शन देखोगे तो नंबर वन जो ऑप्शन है उधर एक हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मतलब क्या होगा? रिजोल्यूशन रेट लो होगा. तो स्टेबल मोस्ट स्टेबल वाला फॉर्म किसका है? हाईएस्ट वाला मेल्टिंग पॉइंट है और उसकी एनर्जी लो है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिजोल्यूशन रेट. इसलिए रिजोल्यूशन भी लो है. तो आंसर भी वन का ये वाला होगा राइट आंसर. ओके. तो उसके बाद वाला हम लोग देखेंगे. उसके बाद हम लोग का क्या है? उसके बाद हम लोग का है कि उसके बाद हम लोग को पूछा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि क्या है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुम लोग देखोगे तो उसमें दिया है कि hot stage microscopy is an important tool in preformulation study for the study of. ठीक है. तो हॉट स्टेज माइक्रोस्कोपी इंपॉर्टेंट टूल है किस स्टडी के लिए, राइट? तो उसमें अगर तुम ऑप्शन देखोगे उसमें दिया गया है स्यूडोमोर्फिज्म. उसमें ऑप्शन दिया गया पार्टिकल साइज मेजरमेंट. उसमें ऑप्शन दिया गया है माइक्रोवेल कॉन्टामिनेशन. उसमें ऑप्शन दिया गया है थोड़ा कॉम्पैक्शन बिहेवियर. तो हॉट स्टेज जो माइक्रोस्कोपी है उसको हम लोग मेनली यूज करते हैं किसके लिए? उसको हम लोग यूज करते हैं मेनली pseudomorphism के लिए. Okay. It is mainly used for pseudomorphism. Okay. Mainly used for pseudomorphism. और pseudomorphism मान क्या है? वो हम लोग का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है. क्रिस्टलाइन फॉर्म. दे आर crystalline forms that are molecular adapt. Means if it is a crystalline compound, then the main compound gets attached to the solvent molecules. That is, they show the particular pseudomorphism, right? They are mainly organic solvents or hydrates. Okay. वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होता है. दे आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होता है और कभी कभार तुम्हारा हाइड्रेट भी होता है. दे आर हाइड्रेट्स. ओके.
तो हॉटस्टेज माइक्रोस्कोपी और एक काम के लिए हम लोग यूज करते हैं, दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके, तो ट्रांजिशन टेम्परेचर डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। इधर आंसर होगा pseudomorph polymorphism. So next one is choose the wrong statement from the following with regard to amorphous current. इसमें क्या ऑप्शन दिया गया कि यूजुअली दे आर एनाइसोट्रोपिक, बी ऑप्शन दिया गया दे आर टेंड टू फ्लो व्हेन सब्जेक्टेड टू सफिशिएंट प्रेशर, सी दिया गया कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड फ्लूइड्स, डी दिया गया दे डू नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। तो amorphous फॉर्म क्या होता है कि अगर amorphous फॉर्म में इफ यू पुट प्रेशर, इफ यू पुट प्रेशर, अगर तुम प्रेशर दोगे देन क्या होगा, it would flow. Okay, it would start flow and flowability happens, right? The amorphous are made by how they are made by freezing the molten mass or super cold mass. उसको हम लोग सुपर कोल्ड फ्लूइड्स भी बोलते हैं amorphous का, सुपर कोल्ड फ्लूइड्स, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन, या फिर हम लोग उसको फ्रीज लिक्विड भी बोलते हैं, फ्रीज लिक्विड भी बोलते हैं। ओके, तो amorphous क्या होता है जिसका कोई प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, वो प्रॉपर मेल्टिंग पॉइंट। ओके, और उसका क्या होता है मेल्टिंग रेंज रहता है, जैसे 100 से 105 110 डिग्री। ओके, दिस इज द मेल्टिंग रेंज। तो कोई पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, देयर इज मेल्टिंग रेंज। ओके, इधर हम लोग का आंसर होगा कंसीडर्ड एज सुपर फ्लूइड, सुपर फुल फ्लूइड जो उसका सिनोनिम है, उसका आंसर होगा। Okay. उसके बाद है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस लिबरेट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, तो हम लोग को क्या पता है, और एक चीज याद रखना इधर और भी जो ऑप्शन है, जैसे तुम्हारा एनाइसोट्रोपिक मतलब दे आर आइसोट्रोपिक मतलब क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी डजंट चेंज, वी चेंज इन डायरेक्शन, बट एनाइसोट्रोपिक में क्या होता है दे चेंज। ओके, तो ये डिफरेंस रहता है, ठीक है, नहीं उसमें चेंज नहीं होता बट इसमें चेंज होता है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक वो सब्सटेंस होता है जो कि एब्सॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम मॉइस्चर, राइट, एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम मॉइस्चर। टेलीविजन किसको कहा जाता है, टेलीविजन कहा जाता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड कर, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विफाई करना इसका वन ऑफ इट, लिक्विफाई करना। यूटेटिंग किसको कहा जाता है, टू सॉलिड कंपोनेंट्स जब हम लोग मिक्स करते हैं एक साथ, दे गेट कन्वर्टेड टू, टू सॉलिड सब्सटेंस को एक साथ मिक्स किए वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड। और इधर हम लोग का बचा है क्या, इफ्लोरेसेंस। तो इफ्लोरेसेंस क्या होता है, इफ्लोरेसेंस उस मतलब सब्सटेंस को बोला जाता है दैट लिबरेट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ओके, इट लिबरेट्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इधर आंसर क्या होगा, इसलिए हम लोग का आंसर इधर होगा इफ्लोरेसेंस, इट लिबरेट्स वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। ओके, फिर क्या है, द पॉलीमर्स एग्जिबिट द फॉलोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। तो उसमें क्या ऑप्शन है कि एक्स-रे क्रिस्टल एंड डिफ्लेक्शन पैटर्न, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटीज, केमिकल स्ट्रक्चर। तो एक्स-रे, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटीज। ओके, तो इसमें हम लोग क्या पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है सब डिफरेंट होता है, बट इन केस ऑफ chemical structure it remains same in case of polymorphism, right? So in what X-ray diffraction, melting, solubility, these are all physical properties. These are all physical properties. Chemical structure is a chemical properties. Here to which will be different. So these three are different, not except bola. So the answer will be chemical structure. Oh, the order of solubility here. Order of solubility को समझना होगा, ठीक है। सबसे ज्यादा ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी के लिए क्रिस्टलाइन हम लोग को पता है, अमोर्फस टाइप होता है तो क्रिस्टलाइन।
तो क्रिस्टलाइन जो होता है, क्रिस्टलाइन में दो टाइप्स के होते हैं। एक मेटास्टेबल, मेटास्टेबल, और दूसरा वाला है तुम्हारा स्टेबल। मेटास्टेबल होता है और स्टेबल होता है, ठीक है। तो एमोर्फोरस जो होता है, एमोर्फोरस क्या होता है? एमोर्फोरस हम लोग का, एमोर्फोरस हम लोग का, एमोर्फोरस इज अनस्टेबल विथ हाई एनर्जी, हाई एनर्जी। और हाई एनर्जी रहेगा तो इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो क्या होगा कि सपोज सबसे ज्यादा एनर्जी हम लोग का ई ए, मतलब एमोल्फोरस की एनर्जी सबसे ज्यादा है। फिर बाद है तुम्हारा ई एम, फिर ई एस, फिर स्टेबल। तो ऐसे ही हम लोग का सॉल्युबिलिटी भी सेम होगा। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगा एमोल्फोरस का, फिर होगा मेटास्टेबल का, फिर होगा स्टेबल। तो ये ऑप्शन कौन सा है? डी। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा होगा तुम्हारा सॉल्युबिलिटी। अच्छा, इधर थोड़ा ऑप्शन कर किया गया इधर, ये सिग्मा होगा, सिग्मा विल बी, इधर सब में ये अमोल्फोरस को लो कर दिया, तो दिस विल बी द सिग्मा। दैट विल बी द राइट आंसर। ओके, अमोल्फोरस सबसे ज्यादा इनमेटास्टेबल स्टेबल। फिर दिया गया कि palmitate ester of chloramphenicol is less bitter tasting than the parent drug because the ester, okay। तो क्यों parent drug palmitate ester of chloramphenicol लेस bitter रहता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मास्क करते हैं टेस्ट के। तो इन ऑर्डर टू मास्क द टेस्ट वी नीड टू प्रिपेयर लेस soluble preparation, ठीक है। here ester is used, okay। so less soluble preparation is needed for test masking, okay। this is a general type of question you need to know। इधर ऑप्शन क्या दिया गया है? as lower solubility, more stable to enzymes that degrade in the gut, directly gets absorbed from the buccal cavity, is less irritating in the mouth। तो इसमें आंसर होगा तुम्हारा, इसमें जो आंसर होगा, the answer will be here in this case will be obviously the answer will be our lower solubility, okay। उसके बाद कौन सा ऑप्शन है कि which of the following solvent system is used to determine the partition coefficient of drugs। तो सॉल्वेंट में हम लोग को क्या होता है कि हाईली नॉन पोलर होता है और टोटली नॉन पोलर, ओके। सॉल्वेंट वन है, सॉल्वेंट वन है हाईली, हाईली नॉन पोलर, हाईली नॉन पोलर या फिर टोटली नॉन पोलर। सॉल्वेंट टू में, सॉल्वेंट टू में हाईली पोलर, हाईली पोलर। तो हेप्टेनॉल एंड वाटर जो होते हैं, मतलब एक होगा हाईली नॉन पोलर सिस्टम रहना चाहिए और एक तो में हाईली पोलर सिस्टम रहना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है? हेप्टेनॉल वाटर, ठीक है। तो हेप्टेनॉल वाटर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नॉन पोलर, दोनों ही पोलर है, ठीक है। फिर तुम्हारा ऑक्टेनॉल एंड इथेनॉल। ऑक्टेनॉल हम लोग का, ऑक्टेनॉल क्या होता है? ऑक्टेनॉल, ऑक्टेनॉल और इथेनॉल में क्या होता है कि ऑक्टेनॉल और इथेनॉल जो होता है उसमें दोनों ही, ऑक्टेनॉल और इथेनॉल दोनों ही नॉन पोलर होते हैं, नॉन पोलर। तो ये भी नहीं होगा। वाटर और इथेनॉल हम लोग का थर्ड ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वाटर भी, वाटर पोलर होता है और इथेनॉल भी पोलर होता है, ठीक है। और लास्ट में दिया गया ऑक्टेनॉल एंड वाटर, ठीक है। ऑक्टेनॉल हम लोग का, ऑक्टेनॉल हम लोग का नॉन पोलर होता है, वाटर पोलर होता है, ठीक है। इसलिए इधर आंसर कौन सा होगा? ऑब्वियसली इधर आंसर होगा करेक्ट डी वाला, ठीक है।
तो हम लोग को पता भी है कि जब हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट निकालते हैं तो हम लोग पार्टीशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इस C1/C2। C1 क्या है? ऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक या फिर नॉन सॉल्वेंट वाइट एक्वस वाइट पोलर ड्रग लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये हम लोग इससे डिटरमाइन करते हैं वेदर द ड्रग इज लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक। now the answer होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर ड्रग ड्रग या फिर ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय व्हिच मेथड। तो इसमें क्या होता है, हम लोग का क्या होता है, हम लोग जब स्टडी करते हैं या स्टार्ट मतलब इनकॉम्पेबिलिटी स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रग एक्सिपिएंट्स जो है, ड्रग एक्सिपिएंट्स एंड तो हम लोग का ड्रग ड्रग का इंटरेक्शन का चांस है, ड्रग एक्सिपिएंट या ड्रग ड्रग का इंटरेक्शन का चांस है, राइट। तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, उसलिए हम लोग को वी नीड टू स्टडी बिफोर फ्लोरोफॉर्मिंग, राइट। लाइक कहाँ पे इनको बहुत जगह लिख देते हैं, मेलर रिएक्शन में हम लोग देखते हैं, मेलर मेलर रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि लैक्टोज प्लस किसके साथ हो रहा है, एमाइन ग्रुप के साथ, एमाइन कॉन्टेनिंग के साथ क्या हो रहा है, इन इनकॉम्पेबिलिटी शो कर रहा है, राइट। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, टैबलेट बिकम्स येलोइश। वैसे टेट्रासाइक्लिन हम लोग का जो होता है, टेट्रासाइक्लिन वो कैल्शियम के साथ होता है। वैसे अब कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जहाँ पे ड्रग ड्रग या फिर ड्रग एक्सीडेंट का जो इंटरेक्शन है वो स्टडी होता है, ठीक है। जैसे डीएससी, डीएससी और टीएल, डीएससी में थ्रू होता है, टीएलसी के थ्रू भी होता है, ठीक है। और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे आईआर, ठीक, आईआर, आई एच पी एल सी के थ्रू भी होता है, तो एचपीएलसी के थ्रू होता है, ठीक है। लिपिंस्की, ठीक है, व्हाट इज, इसके बाद जो क्वेश्चन दिया गया तो इससे को आंसर करूंगा बोथ ए एंड बी। Which of the following statement is true for Lipinski rule, right? लिपिंस्की रूल के लिए कौन सा सही होगा? लिपिंस्की रूल के लिए हम लोग का जो सही होगा उधर ऑप्शन, उधर क्वेश्चन पहले पढ़ना होगा, ठीक है, कि कौन सा सही होगा। जैसे कि हम लोग का लिपिंस्की रूल क्या बोलते हैं, लिपिंस्की रूल हम लोग का बोलते हैं कि for orally active drug we need to identify the solubility and other behavior, ठीक है, that is we can do it for drug delivery। तो इधर कुछ रूल रहता है जो कि तुमको याद रखना होगा, ये एकदम जनरल टाइप का क्वेश्चन है कि क्या रूल सही है। तो इधर जो ऑप्शन सी दिया गया है कि लॉग पी शुड नॉट बी मोर देन 5, ठीक है, दिस इज द वन वी फॉलो, ओके। अब इधर देखो तो ऑप्शन ए भी अगर देखोगे, 5H बॉन्ड नॉट मोर देन 5H बॉन्ड एक्सेप्ट या फिर नॉट मोर देन, ये भी करेक्ट होता, लेकिन ये होता अच्छा ये भी करेक्ट है एक्चुअली, नॉट, आई थिंक ये ऑप्शन डोनर होना होना होता ये, क्योंकि एक्सेप्टर अगर होता तो ये राइट ही हो रहा है, ठीक है, दो आंसर तो सही नहीं होगा। अगर ये डोनर बोलता देन इट वुड बी रॉन्ग। इधर भी तुम देखो, अगर डोनर की जगह एक्सेप्टर बोलता दैट वुड हैव बीन द करेक्ट ऑप्शन, ओके।
लॉक ये सही है, ये भी सही है। अगर एक्सेप्टेड बोला है तो दोनों ही सही है। अगर डोनर बोलता तो ये गलत हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि फ्लूराजपम जो है उसका जो पीके वैल्यू है, फ्लूराजपम का जो पीके वैल्यू है वो कितना है? वो है 0.2। फ्लूराजपम का पीके वैल्यू 0.2। तो परसेंटेज ऑफ फ्लोरोजिपम दैट विल बी आयोनाइज्ड एट यूरिन पीएच 5.2। ठीक है, इसका फॉर्मूला तुमको पुट करना होगा कि परसेंटेज आयोनाइजेशन। ऑप्शन देखे देखो, तुम अगर याद रखोगे तब भी ओके है, बट फॉर्मूला वाइज तुम सॉल्व करोगे तो ये आयोनाइजेशन, परसेंटेज आयोनाइजेशन का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन दिया गया 0.1, 1, 99, 99.9। तो उसमें अगर तुम पुट करोगे तो क्या है? 10 ई ए ए माइनस बी एच, नीचे होगा 1 प्लस 10 बी ए ए माइनस बी एच। इसमें लास्ट में हम लोग इंटू करेंगे 100। तो अगर ड्रग बेसिक है, ठीक है, इधर हम लोग का ड्रग जो है प्रोडक्ट वो अलग क्या है, बेसिक है, ठीक है। उसके लिए ये फॉर्मूला ऐसे नहीं होता तो उल्टा होता, ठीक है। तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 10 इंटू 8.2 माइनस 5.2, इसका डिवाइड करेंगे 1 प्लस 10 8 माइनस 8 इंटू करेंगे विथ माइनस, ये कितना आएगा? ऊपर अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो उधर 1000 आएगा, पीछे आएगा 1001 इंटू 100। तो ये कितना होगा टोटल? 0.999 इंटू 100, तो इसका होगा 99.9%। इससे आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा हम लोग का डी, राइट। 99.9% will be the answer. Okay. 99.9% will be the answer. Okay. उसके बाद है नंबर 12। Okay. An analyst compared the resolution rates of anhydrous and hydrate of ampicillin. What do you result? Do you expect from him? इधर दिया है कि ampicillin form of ampicillin dissolve faster than hydrated, hydrated form dissolve faster than anhydrated, two forms of equal rate of dissolution। तो कौन सा फास्ट डिसोल्व करते हैं, एम एक्वस वाला या फिर हाइड्रेटेड वाला? ये याद रखना कि हाइड्रेट तो तुम लोग सोचते कि वाटर, हाँ तो बहुत जन सोचते कि हाइड्रेटेड फॉर्म का सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो। इट्स नॉट द केस। एनहाइड्रस फॉर्म हैज ऑलवेज greater solubility than हाइड्रस। इसलिए हम लोग का आंसर कौन सा होगा? हम लोग का आंसर होगा बी। अगर देखोगे हाइड्रेट फॉर्म डिजोल्व फास्टर, ये होगा नहीं। ये अगर नहीं होगा तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। बोथ बी एंड सी करेक्ट नहीं होगा। टू फॉर्म्स ऑफ इक्वल, ये भी नहीं होगा। तो आंसर जो होगा एम्पिसिलिन डिजोल्व फास्टर देन हाइड्रेटेड, एंड ये वाला सही होगा। एम्पिसिलिन फॉर्म क्योंकि उसका एनहाइड्रस फॉर्म है, तो एनहाइड्रस फॉर्म क्या होगा? फास्टर डिजोल्व करेगा कंपेयर टू आवर हाइड्रेटेड फॉर्म।
उसके बाद है चूज द करेक्ट ऑप्शन amorphous form of novobiocin so 10 times less viability than crystalline form. A crystalline form of sodium or potassium salt of penicillin G is stable than amorphous form. Suspension of needle-shaped crystal show more syringeability than plate-shaped crystal. ओके, तो हम लोग को क्या पता है कि viability directly proportional to solubility और वो is directly proportional to dissolution rate. Dissolution rate. डीजो रेट किसको इफेक्ट करता है? इट अफेक्ट्स एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन किसको इफेक्ट करता है? एब्जॉर्ब इफेक्ट वायबिलिटी. वायबिलिटी एमोल्फरस फॉर्म क्या होता है कि मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू मोर सॉल्युबल मोर स्टेबल देन द क्रिस्टल. एमोल्फरस फॉर्म क्या होता है? मोर कर देन द क्रिस्टल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल सॉल्युबल होता है. ठीक है, तो मोर बायोलिटी होता है. इधर ऑप्शन देखो एमोल्फरस फॉर्म 10 टाइम्स लेस बायोलिटी. ये होगा ही नहीं क्योंकि हम लोग को क्या पता है कि एमोल्फरस का क्रिस्टलाइन पे बायोटिक ज्यादा ये होता है. ठीक है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सोडियम इज लेस स्टेबल देन एमोल्फरस. तो क्रिस्टलाइन क्या पता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है. हम लोग आगे ही पढ़े विच वन इज मोर स्टेबल लो एनर्जी राइट. क्रिस्टलाइन फॉर्म विल बी क्रिस्टलाइन फॉर्म विल बी लो स्टेबल. ये भी कर रहा हूँ ठीक है. लो स्टेबल होगा नहीं, विल बी हाई स्टेबल. ओके. Suspension of needle shape crystal show more syringability than plate shape. तो प्लेट शेप क्रिस्टल जो होता है वो क्या होता है? इजीली हम लोग उसको बाहर निकल सकते हैं कंपेयर टू आवर नीडल शेप. तो ये भी रॉन्ग हुआ. तो विच वन इज लेफ्ट? विच वन द ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट इज नन ऑफ द अबव. दिस विल बी आवर आंसर. ओके, none of the above will be the correct answer. Next is if water for crystallization present with any crystal molecule refers as solids. Choose the correct composition of hemihydrate. तो इसको हम लोग कर देखो अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन जब बोला है तो जो मेन चीज तुमको ध्यान देना हो तो मोल कंपाउंड को तुमको ध्यान देना ही नहीं. वी हैव टू ओनली थिंक अबाउट दिस मोल वाटर. कितना मोल वाटर इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, पहला वाला है जीरो मोल. जीरो मतलब ये तो हाइड्रेट है ही नहीं. दिस इज एनहाइड्रस. ये तो होगा ही नहीं. दिस कट. और तो उसके बाद लास्ट ऑप्शन जो है टू मोल्स. टू मोल्स मतलब डाईहाइड्रेट. डबल. तुमको बस इजी है ठीक है. तुमको बस देखना है कि कितना मोल का वाटर है. फिर है ऑप्शन नंबर बी और सी. दिस टू आर लेफ्ट. वन वन मोल वाटर. दिस इज आवर मोनोहाइड. मोनोहाइड और हाफ. ये लास्ट ऑप्शन बचा है. तो हेवी जो वर्ड होता है हेवी इसका मतलब होता है हाफ. तो हाफ मोल ऑफ वाटर जो जिसमें होगा दैट विल बी द राइट. सो इसमें बी ऑप्शन विल बी द राइट. दैट इज आवर हाफ मोल वाटर. दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. Drugs have pK between 2.5 to 6.0 एलिमेंट. तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन दिया है कि आयोनाइज्ड है गैस्ट्रिक पीएच एंड आयोनाइज्ड है इन इंटेस्टिनल पीएच. और ये ऑप्शन दिया है कि आयोनाइज्ड इन gastric pH and ionized at all pH value. So दिया गया है practically ionized at all pH value. 2.5 से 6 बोला है.
ये रेंज याद रखना होगा। तो इसमें रेंज मतलब ड्रग इज वीक एसिडिक नेचर, वीक एसिडिक नेचर, ड्रग इज नॉट स्ट्रॉन्ग एसिडिक, इट इज वीक एसिडिक नेचर। ओके। तो आयनाइजेशन हम लोग का क्या होता है, हम लोग का आयनाइजेशन जो होता है इट डिपेंड्स ऑन आवर पीएच, राइट? इट डिपेंड्स ऑन द पीएच। एसिडिक ड्रग्स जो होता है, एसिडिक ड्रग क्या होता है, नेवर कभी आयोनाइज नहीं होता इन आयोनाइज पीएच। इन आयोनाइज पीएच में वो कभी आयोनाइज नहीं होता। आयोनाइज पीएच, एसिडिक पीएच मान के कभी एसिडिक पीएच में आयोनाइज नहीं रहा, नहीं सर। एसिडिक ड्रग जो है वो कभी आयोनाइज नहीं होता एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच मतलब हम लोग का कौन सा, गैस्ट्रिक पीएच, स्टोमक का पीएच हम लोग को पता है कि एसिडिक। तो एसिडिक ड्रग को गैस्ट्रिक पीएच में आयोनाइज होगा ही नहीं, ठीक है? और गैस्ट्रिक पीएच में आयोनाइज होना मतलब आयोनाइज होता है इन और इंटेस्टाइन। तो पहला वाला ऑप्शन जो है आयोनाइज्ड इन गैस्ट्रिक पीएच है, तो होगा ही नहीं, क्योंकि एसिडिक ड्रग अभी उधर आयोनाइज नहीं करेगा। ऑप्शन वन तो करेक्ट होगा ही नहीं। अच्छा, इट रिमेन्स अनआयोनाइज्ड इन एसिडिक पीएच एंड आयोनाइज। तो हम लोग का क्या होता है, एसिडिक ड्रग वो अनआयोनाइज रहता है इन आवर एसिडिक पीएच। फिर कहा जाता है एंड आयोनाइज होता है दैट इज इन आवर स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? तो ई और डी जो ऑप्शन है आयोनाइज्ड एंड ऑल पीएच, प्रैक्टिकल लास्ट वाला जो ऑप्शन है प्रैक्टिकली अनआयोनाइज्ड, दिस इज फॉर, ये कब ये होता है फॉर पुअर नेचर, पुअर नेचर ड्रग। पुअर नेचर ड्रग क्या होता है, हर एक पीएच में आयोनाइज्ड हो जाता है, ठीक? लेकिन और आया हर एक पीएच में अनआयोनाइज्ड है, और आयोनाइज्ड है और पीएच कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग नेचर ड्रग। ये दो ऑप्शन तो होगा ही नहीं। हम लोग का जो होगा राइट आंसर दैट इज अवर अनआयोनाइज्ड गैस्ट्रिक पीएच, क्योंकि हम लोग बोले कि एसिडिक पीएच में वो एसिडिक आयोनाइज नहीं होता है, मींस अनआयोनाइज वो क्या होता है, इंटेस्टाइन में जाके आयोनाइज्ड होता है। ए, ठीक है, आयोनाइज्ड होता है कहाँ पे, इंटेस्टाइन में जाके। ओके। इसके बाद क्या है, द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डिपेंडेंट। ठीक है, तो हम लोग क्या स्टडी किया, हम लोग पीछे पढ़े थे, हम लोग किंडरगन हेकेलबर्ग इक्वेशन फॉर इंटेंशन हेकेल इक्वेशन में उधर क्या दिया गया था, हिंडरसन हेकेल इक्वेशन में हम लोग का दिया गया था कि ये जो होता है, ये 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 इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग आई बाई यू, मतलब log ionized by ionization. This is for weak charge, for weak charge. तो इससे क्या होता है कि you can find out ionization from this equation, right? Mainly ionization find out के लिए हम लोग इससे figure out कर सकते हैं। तो परसेंटेज आयोनाइजेशन क्या होगा इसमें, परसेंटेज आयोना वही फॉर्मूला होगा, 10 एच माइनस पीके बाई 1 प्लस 10 पीके माइनस ए इंटू 100। सब लोग आगे देख ही चुके हैं, राइट? तो मेन क्या हम लोग को क्या कि हम लोग का जो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, पीएच ऑफ मीडिया और पीके का वैल्यू।
तो ऑब्वियसली ये इसको हम लोग ये सब इक्वेशन से स्टडी कर, तो इधर आंसर वो होगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये पहले भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि विच वॉल्यूम ऑफ फॉर्म हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। उस हम लोग को क्या पता है कि स्टेबल वन हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब हाई मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा, हाई मेल्टिंग पॉइंट more will be the directly proportional to the high stability, melting point of high stability so directly proportional, right? मतलब मेल्टिंग पॉइंट जितना हाई होगा उतना कंपाउंड का क्या होगा, स्टेबिलिटी भी हाई रहेगा, राइट? कंपाउंड का स्टेबिलिटी भी तब तक उतना ही हाई रहेगा, राइट? उसके जितना हाई मेल्टिंग पॉइंट उतना क्या होगा, स्टेबिलिटी हाई रहेगा। ठीक है, सो दिस वाज, तो इधर का आंसर कौन सा होगा, स्टेबल, मेटास्टेबल और अनस्टेबल। मेटास्टेबल तो मैं पहले बोली थी, काइंड ऑफ अनस्टेबल, नियर अबाउट स्टेबल, अनस्टेबल नॉट फुल्ली स्टेबल। तो इसलिए क्या हुआ, अनस्टेबल लोग का तो मेल्टिंग पॉइंट कभी हाई नहीं होता कि हाइड्रेट्स इधर होगा नहीं, तो इधर आंसर कौन सा होगा, आंसर हम लोग का होगा स्टेबल फॉर्म। ओके, तो दिस वाज द लास्ट आई थिंक क्वेश्चन फ्रॉम टुडेस टॉपिक। ओके, so thereby I will end today's MCQ session. Okay, practice mode. Okay, if you find any doubt, you can ask AM in the group, and also you can message me personally. All more and more MCQ, क्योंकि वीडियो में तो ऑल एमसीक्यू कवर नहीं होगा, फिर भी जितना भी एमसीक्यू से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके, क्योंकि मेन पार्ट है हम लोग का जीपैट में, जो मतलब मेन मेन जो चीज आता है पर्टिकुलर चैप्टर से, वो हम लोग कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं। ओके, so you keep that in mind and work on it so that जो वीडियो होगा, ठीक है, वो तुम लोग क्या कर पाओगे, यू कैन टेक द एंटायरली एंड टेक द हेल्प फ्रॉम इट एंड स्कोर गुड इन द अपकमिंग एग्जाम, क्योंकि तुम्हारा एक महीना बाद ही है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उतना बेनिफिशियल। थैंक यू, आई थिंक हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, दैट वुड बी अ लाइव क्लास। This was a recorded lecture. Okay. I hope you get to see time and see the video whenever you find time.